is now being recorded. Sir, may I? हाँ बोलिए प्लीज. Sir, the compound which have amine and carboxylic acid both joined together in a single carbon is known as amino acids. It is the basic building units of proteins, and amino acids are the monomeric unit of proteins. Okay, it's fine, but this is not a combination of the two molecules. You have said that it is carboxylic acid and amino acid. These are not two separate molecules. Only functionalities are there. So molecules which contain. It's a carbolic acid with the amine group attached to it. Okay, you can say like that. So you can say these type of molecules are containing both the functional groups amino as well as the carboxylic group. Okay, so if you see these amino acids, particularly alpha amino acids, we are talking about the alpha amino acids. In alpha amino acids, there is a amino group at the alpha position of the carboxylic group. Okay, so you can see here is carboxylic group, and the next carbon is called the alpha carbon. Since there is a amino group attached at this alpha carbon, so these are the alpha amino acids. Okay, and if you see the peptides and proteins, these are made up of the alpha amino acids, not of the other amino acids. These amino group may be at beta position, maybe at gamma position, or these may be on delta and other position. Okay, but they will not form the peptides and proteins. Only alpha amino acids are responsible for the construction or for the preparation of the peptides and proteins. So we can say in short, these are the building blocks of the amino acids. So whenever we do hydrolysis of the peptide or protein, we will get mixture of different amino acids. बहुत सारे amino acids का हमारा क्या होगा, mixture बनेगा. So do you know the total number of the amino acid present in our biological system? Naturally occurring amino acids. Yes, sir. 20. 20. Around 200 amino acids are present in nature, but only 20 of them occur in the protein chain. Protein chain में कितने होते हैं? Around 20. 20 and 2 are amino acids. हाँ, 2 are amino acids. 20 are amino acids and 2 are amino acid. Amino acid में क्या होगा? NH2 के जगह पे क्या होगा? NH group. हाँ, NH only. Okay, so we have 20 amino acids and 2 amino acids, and these are building blocks of the peptides and proteins. So first of all you can see their classification. पहले हम लोग इनको डिस्कस करते हैं कि हम इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं amino acids को. So first way of doing that is based on relative position of the NH2 and the carboxylic group. So I already have told you that naturally occurring amino acids are alpha amino acids. So based upon these their relative position, we can classify them into alpha, beta, gamma, and gamma, delta, and so on. Okay. So see here alpha amino acids in which this amino group is present at the alpha position of the carboxylic group with respect to this carboxylic group. So examples are glycine, alanine, phenylalanine, and other amino acids which are involved in the proteins synthesis. Okay. Now see the beta amino acids. Beta amino acids are having amino group at beta position of the carboxylic group. कहाँ पर है यहाँ पे amino group at beta position next to the alpha. Similarly, we have gamma or delta amino acids. So amino group is present on gamma position, then these are called gamma amino acids, and if they are present on delta and other position, then they are called named accordingly. And second way of doing classification of amino acid is based on their nature. नेचर कैसी होती है कंपाउंड की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचर क्या होता है? इधर दे मे बी एसिडिक, दे मे बी बेसिक, और दे मे बी न्यूट्रल.
So depending upon the number of the carboxylic group and amino group functionality in the amino acids, we can classify them into acidic, basic and neutral. So if we talk about this acidic amino acids, they are having more carboxylic group compared to NH2 group. So in amino acid, it is not restricted that only one amino and one carboxylic group must be there. They may have different numbers of any group, of amino group or of the carboxylic group. ठीक है, it is not necessary कि दोनों equal ही हो या वन ही हो. अगर आपके number of carboxylic group are more compared to the amino group, they are considered as acidic amino acids. So if you see the example, then aspartic acid is one of the example, and second example is the glutamic acid. So you can note down them. Acidic amino acids are those which are having more carboxylic group than amino groups, and examples are aspartic acid and glutamic acid. Now see the basic amino acids. So basic amino acids are containing more amino group. There will be more amino group compared to the carboxylic group, number of the carboxylic groups. And the examples of the basic amino acids are lysine and arginine. Lysine and arginine, these are the example of the basic amino acids. So you have seen acidic amino acids, basic amino acids, and now you can say what will be the neutral amino acid. Neutral amino acids कौन से होंगे? Those are having equal number of COOH group and the amino group. Yes, sir. Yes, it's fine. So those are having equal number of amino and carboxylic group are considered as neutral amino acids. तो ऐसे आपके एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. जैसे अभी आपने ऊपर लिखा था ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन. सो दीज आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. और अभी हम लोग जैसे मूव करेंगे, हमें और मिलते जाएंगे एग्जाम्पल्स. तो आप अभी फिलहाल लिख लीजिए ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन. दीज आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. And third way of doing classification of amino acid is based on nutritional importance. Nutritional importance. So if you see their nutritional importance, we can classify them into essential amino acid, non-essential amino acids, and semi-essential amino acids. So who can define the essential amino acids? ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है. Yes, sir. I can. Please. Amino acids that can't be formed in the body, and so it is essential to be taken in our daily diet. Their deficiency affects the growth, health, and protein synthesis of our body is known as essential amino acids. Yes, perfectly fine. Okay, so these are not being synthesized in our body, but we need them. That's why we have to take them through the diet or the supplements. Okay, essential amino acids are essentially required, but they are not being synthesized in the body. The body में synthesize नहीं हो रहे हैं आपके में, और आपको उनकी requirement must है. So what we have to do, we have to take them through the diet or through the supplements. So 10 amino acids are considered as essential amino acids. मैंने लिखा हुआ है यहाँ 10 amino acids. Essential amino acids कितने हैं? 10 amino acids. और नॉन इसेंशियल क्या है? नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को. बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है, प्रोटीन सिंथेसिस में जरूरत है इनकी, बिकॉज while doing protein synthesis we need variety of the amino acids.
तो वैरायटी जितनी होगी आपके डाइट में या आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी अमीनो एसिड्स की, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं, दे आर जस्ट डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स। जो आपके हेयर का प्रोटीन अलग होता है, नेल प्रोटीन अलग होता है, ठीक है, आप एग के प्रोटीन के देखोगे वो अलग होता है। ऑल आर प्रोटीन्स, ऑल आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज प्रोटीन्स? दे आर हैविंग डिफरेंट combination of the amino acids, different sequences of the amino acids। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सीक्वेंसेस आपकी बॉडी में है, इसका मतलब हमें डिफरेंट टाइप के और वैरायटी ऑफ द अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ any of the required amino acid is not available in your diet, it will lead to some kind of the disorder, ठीक है, it will lead to some kind of disease or disorder। तो नॉन इसेंशियल की ऐसा नहीं है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे आर रिक्वायर्ड, बट बिकॉज दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड, नॉट नेसेसरी टू टेक देम थ्रू डाइट। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है, because they are being synthesized in our body through biochemical processes and need not to take from outside। So these are considered as non-essential amino acids। अब बात करें सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल कौन से होते हैं फिर? Sir, the amino acid which are formed in the body but not in a sufficient amount for the body functioning and can be required especially in children or pregnant ladies for Yes। the proper functioning of the body। बिल्कुल बिल्कुल, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो अभी हमारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स से दे बिकम सेमी इसेंशियल, बिकॉज उस टाइम पे जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना नहीं सफिशिएंटली सिंथेसाइज हो रहा है। सिंथेसाइज तो होता है नॉर्मल कंडीशंस में, सफिशिएंटली सिंथेसाइज होता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस है जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की, तो वहां पर हमारे कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे विल बिकम द सेमी इसेंशियल एंड वी हैव टू टेक देम फ्रॉम diet also। It become necessary to take them through diet। and lactating mother को फीडिंग करानी होती है, तो वहां पे भी कुछ अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, देन दे बिकम द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। एंड इन प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, तो ये कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है जहां पे हमारे जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिनकी जनरली हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे विल बिकम द इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। ओके, एंड एग्जांपल आर ऑर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है, ऑर्जिनिन के आपको सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं। हिस्टिडीन हमारे, जब आप देख रहे हो एलर्जी कंडीशन जब होती है, तो एलर्जी कंडीशन में क्या होता है, दिस हिस्टिडीन कन्वर्ट इनटू द हिस्टामीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जो हिस्टिडीन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां से CO2 रिलीज हो जाता है, एंड दिस हिस्टिडीन विल कन्वर्ट इनटू द हिस्टामीन। अब हिस्टामीन की क्या जरूरत होती है बॉडी में इन एलर्जी कंडीशन? इट वर्क एज ए कॉसेटिव एजेंट। कॉसेटिव एजेंट का मतलब होता है जो एलर्जेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है वो। तो ऑल ऑफ सडन ये आपका बॉडी में खत्म होना स्टार्ट हो जाता है जैसी एलर्जी कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे किसी को जुकाम होने वाला हो या सब कुछ, जैसे फीवर वीकनेस का टाइम जब आपकी बॉडी में आता है, जब आपकी बॉडी के ऊपर आउटसाइड से जो एलर्जेंस होते हैं उनका अटैक स्टार्ट होता है, then your histamine will convert into the histidine will convert into the histamine and we have to replenish them through diet। और अगर आप नहीं करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड यू विल फॉल इल। अगर आप इसको रिप्लेनिश करते रहें थ्रू डाइट, so your body will fight better and your immune system will become stronger and you can easily combat the disease or illness। Am I right? So how can you do that? कोई आप सोर्स बताएंगे हिस्टिडीन का जिसमें आपको इजीली आप इसको आपको अवेलेबल हो जाए? जो रेड वाली दाल आती है ना, लाल दाल मार्केट में होती है, यस सर, तुअर की दाल। हाँ, रेड दाल इज ए रिच सोर्स ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। तो जब अगर आपको लगे आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस आपको फील हो रहा है ड्यू टू वेदर चेंज और ऑल अदर काइंड ऑफ द इन्फेक्शन,
तब आप यूज कर सकते हो उसको. एंड यू कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन, वेराइटी ऑफ प्रोटीन. तो आप अगर आप वेराइटी ऑफ प्रोटीन अगर आप यूज करोगे, देन योर इम्यून सिस्टम विल बिकम स्ट्रोंगर. और ऑर्जिनिन के कैप्सूल्स जो होते हैं ये दिए भी जाते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को दिए जाते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को भी दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो दे आर इसेंशियल, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. So amino acids are 20 amino acids, 2 are amino acids, total 22 amino acids are there. So this is the list of the amino acids. So you can see here, you have seen the general structure of amino acid, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया होगा general amino acid का structure ये रहा. So we are having here R group. So by changing this R, you can get different amino acids. तो अमाइनो एसिड्स में क्या डिफरेंट होता है? वी आर हैविंग दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस अमाइनो ग्रुप अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, एंड दिस आर ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन. सो बाय चेंजिंग दिस आर यू कैन गेट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. तो आप देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है. ग्लाइसिन में आर के जगह पे क्या है? एच. इफ यू टेक दिस एंड वी कैन राइट दिस एज GLY. These are 3 alphabet notations or 3 alphabet designations, and this is 1 alphabet abbreviation for glycine. अगर आपके कहीं G लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ग्लाइसिन होता है, और GLY लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ग्लाइसिन होता है. Similarly, alanine is having CH3 group, and this is represented as A or ALA. Valine, this is tertiary, this is isopropyl group in valine, and we represent that by V, or we can also write that as VAL. Initial letter is capital VAL. And I have written here E. This is essential amino acid. Valine is a essential amino acid. Leucine CH3, CH3, CH2, and we represent that by capital L and LEU. This is also a essential amino acid. ये नोट करते रहो साथ साथ. Isoleucine. So isoleucine will have this group CH3, CH, CH3, CH, CH3. Leucine में अगर आप यहाँ एक और H को रिप्लेस करते हैं by this methyl group, you will get the isoleucine. And this is represented as ILE, and this is also a essential amino acid. 6th is proline. Proline, you can see here, it is a amino acid, not a amino acid. This is amino acid, and we represent that by P and PRO, proline. Next is phenylalanine. Phenylalanine, we represent that by F or PHE. This is also essential amino acid. 8th, this is tryptophan. So tryptophan is having this indole moiety. So indole moiety is there, and it is denoted by W or TRP. This is also belong to the essential amino acid category. कर लो नोट फटाफट. Now see the next. Next is methionine. Methionine is having CH3 as CH2, CH2. This is sulfur containing amino acid. This is the amino acid which contain a sulfur atom.
and we represent that by M or MET, methionine. MET, methionine, and it is an essential amino acid. Now see the cysteine. Cysteine is having disulfide linkase. Disulfide linkase is there in cysteine. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिस्टीन का. CHNS2 COH CH2. So you can say this is a dimeric form. आप एक तरह से ये कह सकते हैं. This is bis form and it is having disulfide linkase. तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CYS whole twice cysteine. Next is serine. Cysteine is also essential amino acid. Serine is having alcoholic group HOCH2 represented by S or SER. Threonine में क्या है? Threonine is having CH3CHOH. And threonine is an essential amino acid represented by THR or T. अभी ऊपर हमने सिस्टीन देखा था, अब देखिए सिस्टेइन. सिस्टेइन क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो मोनोमेरिक फॉर्म में. यहाँ जो हमारे बिस फॉर्म थी है, यहाँ पे क्या है? सिंगल सल्फर एटम इज देयर, SH ग्रुप इज देयर, SH CH2 CH NH2 COH, and it is represented by C and CYS. It is not essential amino acid. जो ऊपर वाला था cysteine, this was the essential amino acid. ज्वाइन करना चाह रहा था. इसके बाद है टायरोसिन. Tyrosin is containing a phenolic group. If a hydroxyl group is present on the aromatic ring, then they become the phenols. So tyrosin contains a phenolic group, and we represent that by TYR, simply by Y. So remaining, you can complete the list. So I have written here structure of the 14. तो रिमेनिंग आपको करना है, कर लेंगे ना? यस सर. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना लिस्ट को. यस सर. Now see the requirement of the amino acid. 1 to 2 gram each amino acid per day is required for an adult person. कितने रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड की? 1 to 2 ग्राम पर डे. और अगर इससे कम होगा तो इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ द डिसऑर्डर और सम काइंड ऑफ डिजीज. Here I have given some examples of the food which are not having all the essential amino acids. So you can see here this gene protein. Gene is a protein of the corn. It is a corn protein. ZEIN, gene. So it is having a shortage of the two essential amino acid, lysine and tryptophan. इस जीन जो प्रोटीन है, बेसिकली जीन इज फाउंड इन द कॉर्न प्रोटीन एंड दिस हैज शॉर्टेज ऑफ द लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन essential amino acids, and it will lead to the kwashiorkor disease. अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कॉमन है बिकॉज द मेन फूड ऑफ African people is corn,
they mostly use corn protein, which is shorter, which is having shortage of the lysine and tryptophan, essential amino acids, and it lead to kwashiorkor disease, which is a malnutrition, in the children. This gliadin is a wheat protein. gliadin में क्या होती है शॉर्टेज? दिस हैज अ शॉर्टेज ऑफ द लाइसिन. सोया प्रोटीन हैज शॉर्टेज ऑफ द मिथियोनिन. सोया प्रोटीन में क्या नहीं होता, इसमें कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता? मिथियोनिन. इफ यू सी दिस gliadin, which is a wheat protein, it is having shortage of the lysine. But if you see this milk protein is called casein. Casein has 19 amino acids, including all essential amino acids. Milk protein में कितने amino acids होते हैं? It has 19 amino acid, including all the 10 essential amino acids. सारे essential amino acids होते हैं. So you can say milk is a complete protein. Milk is a complete protein, but these soya protein, wheat protein, corn protein, these are incomplete proteins because they are having shortage of one or more essential amino acids. Clear to everyone? Yes, sir. In addition to that, these diets are for the vegetarian persons. Meat, fish and eggs, these all contain all the essential amino acids. These are also called or considered as complete proteins. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप यूज कर सकते हैं. वो बात अलग है कि इसके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. अगर आप बहुत हाई फैट मीट या फिश अगर आप यूज करते हैं, इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ अदर डिजीज. ठीक है, और प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में, आपका बीपी इंक्रीज होना और वो सारी चीजें क्रिएट होंगी. बट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ if we consider about the proteins only, then these are called complete proteins because they are containing all the essential amino acids. ठीक है, तो जब भी आपको लग रहा है बॉडी में वीकनेस है कुछ भी, यू कैन यूज वैरायटी ऑफ प्रोटीन. बिकॉज आप देख रहे हो ना, वेजिटेरियन जो डाइट है, दे आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स, दे आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ वन और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड. तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन के लिए आपको फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड यू हैव टू यूज. एक ही तरह का खाना नहीं खाना है. तो आप कह सकते हो दाल, चावल और रोटी, तीनों को अगर आप कॉम्बिनेशन अगर यूज करोगे, देन इट विल हैव ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड इट विल बिकम द कंप्लीट फूड. तो ये तो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे, अभी ये सारी जनरल डिस्कशन था अबाउट द अमीनो एसिड्स, बेसिक नॉलेज थी. तो यहां तक सबको समझ में आया? कुछ पूछना चाह रहा है कोई? अभी तक बहुत बेसिक चीज हमने. हाँ बोलिए सर. ये जो आप स्क्रीन पर ये नोट्स शेयर कर रहे हो सर, ये आप क्या गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड करोगे? आपको पढ़ने से ज्यादा टेंशन नोट्स की होती है. मैं हमेशा ये देखता हूँ. नहीं सर, वो तो पढ़ लिया सर. मैं फिर बस पूछ रही हूँ सर. आपने पूछा डाउट पूछ लिया तो अभी पूछ लेती हूँ. 15 साल पहले जब पढ़ाता था तब भी बच्चों की यही प्रॉब्लम थी, और आज 15 साल बाद में भी यही प्रॉब्लम है. इससे आगे बढ़ो. नोट्स का क्या है, नोट्स तो आप पढ़ रहे हो, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अगर जो अभी तक मैंने पढ़ाया अगर वो आपको समझ में आ गया तो जैसे कि हमारा थोड़ा मैथ्स डिपार्टमेंट है तो केमिस्ट्री थोड़ी कम पता है, तो सर इतनी सारी चीज हम स्टोर नहीं कर पाते. तो सर वी नीड सपोर्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव केमिस्ट्री बट वी आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम इट. So that's why sir. मैथ वाले बच्चे भी हैं अभी इसमें क्लास में. Maths mind, it's calculative mind, so we need notes. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर दैट. बट आप साथ साथ लिखते रहोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैं तो लास्ट में शेयर करूंगा जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना. तब तक आप लिखते रहो, पढ़ते रहो.
श्योर क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख लोगे, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बनाए हुए हैं, इनको मैं ही समझ सकता हूँ वैसे। ठीक है, बाकी मैं ओके शेयर सर। कर दूंगा जी अगर सर। आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा यूजफुल है आपके लिए तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को नोट्स के अलावा? ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ सी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आप पढ़ के आओ ना 11th-12th क्लास में, याद है कुछ? यस सर, 11th-12th में पढ़ी है। ठीक है, सो कैन यू डिफाइन द स्टीरियो आइसोमर्स? क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? सर जिनकी स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग होती है सर, लेकिन कंपोजिशन सेम होती है, स्ट्रक्चर्स। कंपोजिशन सेम है। मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। मतलब कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? अगर आपके एक फर्स्ट एग्जांपल में सपोज करिए आपके कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग है, ठीक है, और दूसरे में भी कार्बन से कार्बन की है, बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ हो कि एक की कार्बन की बॉन्डिंग आपने ऑक्सीजन से कर दी हो दूसरे वाले एग्जांपल में। So there must be same connectivity of atoms or groups, but different arrangement in space. अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। सपोज कीजिए आपके एक आपके पास मॉलिक्यूल, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप टुवार्ड द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, और दूसरे वाले में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उससे दूर है, जहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो आपसे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल तो सेम है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, देयर 3D स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो अगर हम अमीनो एसिड्स को देखें पहले, सबसे पहले अमीनो एसिड का स्टीरियोकेमिस्ट्री। So you have seen amino acids are having carboxylic group, amino group and a variable R group. तो वेरिएबल R ग्रुप आपका चेंज होता रहेगा, जो भी आपका अमीनो एसिड होगा डिपेंडिंग अपॉन, एंड इट हैज ए हाइड्रोजन एटम अटैच विद द chiral carbon, so it is having a chiral carbon. So all amino acids are having this chiral carbon except one amino acid. कौन से अमीनो एसिड में chiral carbon नहीं होता? ये भी मैं आपसे पूछ, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में नहीं होता, हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन ये होते हैं दोनों, इसलिए वहां पे कोई कायरल कार्बन नहीं होता। कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिसमें हमारे कायरलिटी जनरेट हो, जी, जहां पर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे हमारा ये कायरल कार्बन होता है अमीनो एसिड में एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो आप देखोगे जब हम इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखें, ये भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है? वी रिप्रेजेंट देम बाय ए क्रॉस। जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है इट रिप्रेजेंट द कार्बन। यहाँ जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा इस क्रॉस का, यहाँ पे ये क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, और बाकी जो हमारे दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हमारे ग्रुप से दीज आर टुवार्ड द ऑब्जर्वर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स होते हैं दीज आर टुवार्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ होते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड दिस आर ग्रुप, दीज आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको बनाओगे अलग से तो आप इन दोनों को ब्रोकन लाइन से शो करोगे। कार्बोक्सिलिक के साथ जो बॉन्ड बन रहा है CCOH एंड CR जो बॉन्ड है, दिस विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रोकन लाइन बिकॉज दीज आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो हमारा ये NH2 और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज टुवार्ड द ऑब्जर्वर। तो इसको आप सॉलिड लाइन से बनाओगे। सॉलिड लाइन ऐसे होती है, ये दिख रही है जो आपको, ठीक है। तो और ऐसे ही CH जो बॉन्ड है ये भी टुवार्ड द ऑब्जर्वर है बिकॉज दिस इज ए 2D स्ट्रक्चर। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कौन सी स्ट्रक्चर होती है हमारी? 2D स्ट्रक्चर। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम असाइन करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर हम अमीनो एसिड की देखें तो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द रिलेटिव मेथड एंड सेकंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है? वी आर हैविंग ए कंपाउंड विच हैज द नॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होता है।
जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले से असाइन कर दिया हो, जिसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया हो, तो उसके बेसिस पे हम बाकी मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। और एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता है, वी आर नॉट हैविंग एनी standard compound, non-compound, we have to follow certain rules and have to assign configuration directly to any molecule. तो पहला जो हमारा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आप नोट कर लेना ये साथ में, क्योंकि यहाँ पे शायद नहीं भी लिखा हो, मैंने पता नहीं, आप नोट कर लो। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आता है हमारा डी एंड एल, कैपिटल एल लिखा हुआ ना यहाँ पे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम जो असाइन करते हैं दैट दीज आर कॉल्ड डी एंड एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशंस, डी एंड एल नोटेशंस। तो अमीनो एसिड्स को हम डी एंड एल असाइन करते हैं। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू द अमीनो एसिड्स। मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं अमीनो एसिड्स के केस में या कार्बोहाइड्रेट के केस में डी एंड एल असाइन कर देते हैं हम। कैसे करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड कंपाउंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिख रहा है। Are you able to see this D-glyceraldehyde? Yes, sir. So ये Fisher projection formula which was given by the Emile Fisher. Emile Fisher ने ये projection formula दिया था, and he arbitrarily assigned configuration to this molecule. कैसे assign करा था D-glyceraldehyde के लिए? D, the molecule which is having OH on the right hand side of the Fisher projection formula. क्या लिखोगे आप? Molecule which is having OH on the right hand side of the Fisher projection formula was assigned D configuration. So this is the first example which was assigned by the Emile Fisher, this D configuration. ठीक है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कहीं से कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस उसकी मर्जी थी। एमाइल फिशर का मन हुआ कि जो जहां पे OH राइट हैंड साइड में, ही असाइन डी कॉन्फ़िगरेशन टू दैट, और हम आज सब उसको डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड बाय फॉलोइंग एमाइल फिशर। तो ये हमारा रिलेटिव मेथड हो गया, क्योंकि हमने रिलेटिवली असाइन करेंगे बाकी मॉलिक्यूल्स को। सिमिलरली ही असाइंड एल कॉन्फ़िगरेशन टू दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिख रहा है आपको OH लेफ्ट हैंड साइड में? अच्छा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास कोई एक्सेल सीट है तो आप उसमें एक्सेल सीट में मुझे लगा करके एक बना के भेज दीजिए, ठीक है? थोड़ा टाइम बच जाएगा, बड़ी क्लास है, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता अटेंडेंस लेना। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में एक एक्सेल सीट बना के और उसमें मुझे लगा के भेज देना, ठीक है? तो ये हमारे पास एल ग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया, यहाँ पे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, दोनों का असाइन किया हुआ था पहले से किसने? एमाइल फिशर ने। इसी के बेसिस पे हम बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का असाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं अमीनो एसिड में हम इसको कैसे एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस मान के कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमीनो एसिड में हमारे में अमाइनो ग्रुप होता है या NH2 होता है, यहाँ पे OH है। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज सुगर, इट इज अ सुगर मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट सुगर, सिंपलेस्ट एल्डोज सुगर। सबसे छोटा जो सुगर होता है वो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, एल्डोज सुगर। इसी के बेसिस पे आप देखिए अमीनो एसिड में हमारा इंस्टेड ऑफ OH वी आर हैविंग दिस NH2, since this NH2 is on the left hand side, keeping this carboxyl group on the top on the vertical line. वर्टिकल लाइन के टॉप पर आपको किसको रखना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो अगर हमारा ये NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया? एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया, एल अमीनो एसिड। अगर आपका एल एलेनिन है तो आप इसके आगे लिखोगे एल एलेनिन, ठीक है? आर की जगह अगर मिथाइल ग्रुप हो तो देन इट विल बिकम द एलेनिन, so you will write here L alanine because this NH2 is group on the, this NH2 group is on the left hand side of the Fisher projection formula. Similarly, see another example, this having NH2 on the right hand side, so you have to assign this D configuration. So that is the way by which you can assign configuration to the amino acid relatively using D and L notations, capital D and capital L. But never mix these capital D and capital L with small d and small l. ये भी ध्यान रखना, स्मॉल d अलग चीज होती है और स्मॉल l अलग चीज होती है, वो बाद में बताऊंगा।
आप ध्यान रखो कैपिटल डी है तो कैपिटल डी ही यूज करना है, स्मॉल डी नहीं लिखना कभी भी गलती से भी। तो इस तरह से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। अब बाद में ये आरएस नोटेशंस में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, आरएस नोटेशंस हम कैसे कर सकते हैं ब्रीफ में, क्योंकि हम अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी खाली अमीनो एसिड की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। सो इन शॉर्ट आई विल टेल यू हाउ कैन वी असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। It is an absolute method. We are not supposed to take any reference, and we have to directly assign configuration to the given amino acid molecule. एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि all amino acids, naturally amino acids are found in L configuration. L configuration में ही होते हैं जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं naturally occurring, these are found in L configuration. And fortunately sugars are found in D configuration. ठीक है? Can you tell me what happened if we are consuming D amino acid instead of L amino acid? क्या होगा अगर हम D amino acids यूज करें L amino acid की जगह? प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, और क्या यूज कर सकते हैं हम डी की जगह एल, एल की जगह डी? हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें एंजाइम्स जो अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डी अमीनो एसिड्स एंड सिमिलरली फॉर एल सुगर्स। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे लिए, उनका यूज करने का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। चलिए आज की क्लास ओवर करें फिर यहीं पे, टाइम हो गया है। यस सर। ठीक है, कल भी तो हमारी क्लास है ना, अब तो रेगुलर 4 दिन है हमारी क्लास, है ना? कल की क्लास में करते हैं बाकी। यस सर। अटेंडेंस हो गई? सीआर अटेंडेंस ले ली सबने? ठीक है। सो नाउ यू मे लीव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।